यूपीएससी प्रीलिम्स अराउंड 2025 हो या 26 हो, और इफ यू सी द हिस्ट्री ऑफ द एग्जामिनेशन in the last maybe few decades also, आपको एक बात क्लियर है that more than 95% people will fail the prelims exam. यानी अगर यूपीएससी में 15,000 लोग prelims निकालते हैं, that means technically out of 5 lakh 3% people will clear the exam. 97% लोग fail होंगे and only 3% will see the success or light of the day. Now question comes that success or failure ये तो preparation का part है, but what will make you a winner and how you should do things differently so that you are able to crack the prelims examination. Now I am telling you because I have experience where I have given 3 prelims and 3 mains. तो 3 prelims में ही तीनों हर attempt में prelims का exam निकाला है. There is nothing rocket science about it, but yes, every prelim is a unique examination और आप इस बात को assure नहीं कर सकते हैं कि अगर आपको success इस attempt में मिला है तो अगले अटेम्प्ट में भी आपका प्रीलिम्स निकलेगा. देयर इज नो सर्टेनिटी, देयर इज नो फाइनलिटी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड ट्रीट प्रीलिम्स एज इफ लाइक दिस विल हैज टू दिस challenge has to be overtaken. The question comes that अगर 97 लोग फेल हो रहे हैं तो उसके पीछे रीजन क्या है? There are people, the 3% will get success and the remaining 97% will be failed or failure होगा. Now if you look at the strategies of the people जो एग्जाम निकालते हैं, you will find certain commonalities. The people who crack prelims, they are mainly the people who focus more on process and strategy. उनका process define होता है, strategy driven होते हैं, they are very calculus, they are very meticulous and they know things and how things are working. So naturally these are people will decide. यानी ये लोग का selection होगा, कोई जरूरी नहीं है, but this is definitely there. The second is they understand the requirements of CSE, यानी जो examination है, pattern है, exam कैसे बदल रहा है, requirements क्या है, where you stand. So you not only understand the requirements of UPSC, but you also understand कि where I stand. एक सेल्फ असेसमेंट भी प्रिपरेशन का आपका होता है. थर्ड इज चेंजिंग ट्रेंड एंड पैटर्न. नाउ रिमेंबर यूपीएससी का अगर आप पूछो what is the trend and pattern, the answer is there is no clear trend. You can't say with certainty कि भाई ये क्वेश्चंस आएंगे या इस तरह का ट्रेंड होगा, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे. the answer is no. UPSC is under the garb of uncertainty. वो प्ले करते हैं, अप्रोचेस बदलेंगे, क्वेश्चन के तरीके बदलेंगे, they will bring new kind of questions, but still people who prepare properly, who follow approach, who understand how even the uncertain part has to be addressed, they will get success. और एक और बात है, the serious aspirants में भी 15% ज्यादा नहीं है, maybe 10%, 15% out of 5 lakh people who are going to give the exam, उसमें से maybe 75,000 people, 75,000 people are actually serious. यानी हर maybe every 4-5 students पे एक बच्चे का निकलेगा. So don't think that you are looking at 97% crowd. You just look at the serious crowd जो तैयारी कर रहे हैं, and these will be cracking the prelims examination. So naturally success आपका 5 में से 1 या 5 में से 1.5 लोग या 2 लोग एग्जाम निकालेंगे. You have to be among them. जहां तक फेलियर की बात है, फेलियर इज नॉर्मली बिकॉज ऑफ रैंडम अप्रोच. यू आर रैंडमली स्टडिंग, देयर इज नो प्लान, देयर इज नो अप्रोच, यू आर स्टडिंग समथिंग लाइक दिस. आज कुछ पढ़ा, कल कुछ पढ़ा, टेस्ट नहीं दे रहे हो, रिविजन नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एग्जामिनेशन. एग्जाम के पैटर्न कैसे बदल रहा है, पीवाईक्यूज आप नहीं देख रहे हो, सो दैट इज रैंडम अप्रोच. सेकंड इज मल्टीपल सोर्सेज. नाउ वी लिव इन ORN और यहां पर आप देखोगे स्टूडेंट्स मल्टीपल सोर्सेज को फॉलो करते हैं एंड दे मेक रिपीटेटिव एंड continuous mistake. Then focus more on the study than revision. आप focus आपका पढ़ाई पे होता है, revision पे नहीं होता है. That is a common it is a recipe for disaster, recipe of failure, जहां पर regularly जो है आप हमेशा अपनी preparation में इन gaps को देखते हो. So focus on study and then revision. That is also one of the challenges which has to be there. तो जो भी students हैं, जो aspirants हैं, अगर उनको success या failure मिलता है, उसके पीछे की जर्नी देखनी बहुत जरूरी है. वन मोर थिंग, क्या ये हम कह सकते हैं कि सक्सेस सबको मिलेगा अगर वो फॉलो करते हैं? वेल, नॉट नेसेसरली, बट इतना जरूर है कि अगर आप फॉलो करेंगे तो आउटकम की सर्टेनिटी बढ़ जाएगी. व्हाट सम सर्टेन फैक्ट्स अबाउट द फर्स्ट स्टेज, यानी प्रीलिम्स जो निकाल रहे हैं उससे कुछ फैक्ट्स आपको बताना चाहूंगा. दिस इज द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल एंड अनसर्टेन पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन. यहाँ पे बहुत अनसर्टन होगा. जैसे मान लीजिए आप एक लंबी चढ़ाई पे जा रहे हैं, तो आप लेट्स से यू आर गोइंग ऑन अ माउंटेन हाइक, आप जो है माउंटेनरिंग कर रहे हैं एंड सडनली कभी बर्फ पड़ जाएगी, कभी बारिश आ जाएगी, कभी मे बी सम काइंड ऑफ डिफिकल्ट वेदर आ जाएगा. ऐसा ही कुछ यूपीएससी की तैयारी में भी होता है. प्रीलिम्स में अनप्रिडिक्टेबल पार्ट विल टेक यू ओवर एंड अ लॉट विल डिपेंड ऑन योर मेंटल स्ट्रेंथ कि आप मेंटली कितना स्ट्रांग है.
देन एफर्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आउटपुट, आंसर इज नो। आपके एफर्ट से आउटपुट का कोई प्रोपोर्शन नहीं है। हाँ, एफर्ट करेंगे, राइट एफर्ट करेंगे तो आउटपुट बढ़ने की प्रोबेबिलिटी है, बट सर्टेनिटी नहीं है। यानी आपका एफर्ट अच्छा होगा तो सक्सेस मिलेगी, इसके सर्टेनिटी नहीं है। बट क्वालिटी एफर्ट, डायरेक्शनल एफर्ट, एफर्ट विच इज वेरी कैलकुलेटिव एंड प्लान, वहां से आउटपुट मिलने की संभावना बढ़ जाती है। देन द थर्ड, सीसैट, एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। नेक्स्ट 6 मंथ में आपको सीसैट को समझना होगा एंड यू हैव टू मेक एन एफर्ट टू ओवरकम दिस पार्ट। फोर्थ इज एवरी प्रीलिम्स न्यू एग्जामिनेशन, हर प्रीलिम्स अपने आप में नया एग्जाम है, हर ईयर का प्रीलिम्स नया एग्जाम है। अगर आपने लास्ट ईयर निकाला था तो इस साल निकलेगा, तो आंसर इज नो। निकल सकता है, नहीं भी निकल सकता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू आस्क योरसेल्फ वेयर यू स्टैंड एंड हाउ वेल यू आर एबल टू ओवरकम दैट पार्ट। अगर आप इस बात के लिए मेंटली तैयार हैं तो तैयारी करिएगा और तभी चीजों को ओवरकम करेंगे। सो द सक्सेस 97% will fail, but what you should do to be among that 3% is something that you should be looking at। यानी आपको इस बात का ध्यान देना है कि भी मैं ऐसा क्या करूं कि उस स्टार्टिंग की जो 15,000 की लिस्ट है उसमें मेरा रोल नंबर आ जाए। एंड बिलीव मी दैट फीलिंग इज वंडरफुल, बट उस फीलिंग के लिए आपको अपने प्रोसेस और स्ट्रैटेजी पे काम करना होगा। एंड विश्वास मानिए, इन द कमिंग 6 मंथ वी आर गोइंग टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इन दिस एरिया एंड यू विल सी द रियल आउटकम, यू विल सी द रियल आउटपुट। तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, कीप द गुड वर्क। एक और बात, हम लोग प्रीलिम्स का जो एग्जामिनेशन है उसके लिए सार्थक प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज है उसको हम लॉन्च कर रहे हैं 2025 के लिए, और इसमें टोटल 78 टेस्ट होंगे आपके। एंड दीज टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन टर्म्स ऑफ टॉपिक वाइज, इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट वाइज एंड इन टर्म्स ऑफ फुल टेस्ट एंड द सीसैट। तो ये सारी चीजों पे हम काम करेंगे। यू जस्ट हैव टू बी thorough with this and make an effort. So thank you very much, take care, God bless you, keep up the good work and make sure that आप इस इन वीडियोस को फॉलो करिए, चैनल्स को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब टू आवर टेलीग्राम चैनल एंड बी रेडी। गुड विशेस, गॉड ब्लेस यू टू ग्रेटर हाइट्स, टेक केयर।